The Tantra physics classes. Here I deliver one more lecture on graphics. लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सप्लेन किया था. पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी, उसके स्लोप से. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसे हमें वेलोसिटी मिलता है और हमने निकाला है वेलोसिटी. और पोजीशन टाइम ग्राफ के एरिया से वो एरिया को भी हम इस्तेमाल करेंगे. हम ग्राफ का जो एरिया है उसको भी हम यूज करेंगे. उससे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर निकल पाएगा तो हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल स्लोप पर ही हम कंसंट्रेट करेंगे. एंड टुडे आई विल डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या हमें मिलता है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हमें हासिल हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सो पॉइंट नंबर 1, obviously it is a second lecture on graphics, so those who have not watched the first lecture, they need to watch first lecture before they go to the second lecture. Point number 1, velocity time graph. Velocity time graph क्या मिलने वाला है हमें velocity time graph से? What we are going to get from velocity time graph? Let me make the velocity time graph. It is time versus velocity. It's the origin of the coordinate system. And let me suppose this is the graph. This is the graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये पहले स्ट्रेट लाइन दिखाया, और अगर आप देखो तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. लेट मी फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. ड्रा अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस. ये ही लाइन एक ट्रायंगल बन गया. ये दो लाइंस को ड्रा करने से ये थीटा है, और आपको पता है जो स्लोप है वो tan थीटा होता है. दैट इज tan थीटा. तो किसके बराबर लिखूं मैं tan थीटा? वही है स्लोप. यस, दैट इज द स्लोप. परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड बेस फ्रॉम हियर. परपेंडिकुलर को रीड करो कहां से? वेलोसिटी एक्सिस से. अगर ये v2 समझो, ये v1 समझो, ये t1 समझो, यहां t2 आप मार्क करो, तो बताइए तो स्लोप किसके बराबर होगा इस ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? इट इज परपेंडिकुलर, that is v2 minus v1, this part of the distance, that is v2 minus v1, by base, that is t2 minus t1. So it is just a delta v, change in velocity by time interval, and by definition this is acceleration. That is all. तो यहां से हमें सीखने को यह मिलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए, that is just equal to acceleration. So the slope of velocity time graph gives us acceleration. That is it. So I will write it down. The slope of velocity time graph gives us acceleration. Gives acceleration. तो यहां acceleration क्या है? Is it variable or constant? यहां acceleration constant है, because slope ही constant है. और अगर हमने ये साबित किया कि slope is acceleration, अब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव. थीटा इज लेस देन 90. प्लीज वॉच दैट लेक्चर, अर्लियर वन. उसको वॉच करने से ये आपको इजीली समझ आ जाएगा. यहां थीटा लेस देन 90 है तो tan थीटा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया. सो the velocity time graph, if we just find the slope of the velocity time graph, that will give us acceleration. Okay, that is point number 1. That is the starting point. Now let me give you the examples how to find acceleration in some cases, in some graphs. I will make the graph and then I will try to find the acceleration from those graphics. And today I am going to discuss only velocity time graph. Okay, point number 2. Point number 2. Time versus velocity. Let this be the graph.
Okay, like this. It is 0, it is 10, maybe it is 30, maybe it is 40, and this is velocity axis, maybe it is, okay, let me make it 20 meters per second here. Here it is seconds. It is meters per second. Now it is O, A, B, and C. If you want to find velocity, not acceleration, velocity I say. If you want to find velocity, you directly read the graph. At the time t is equal to 0, velocity is 0 because the graph starts from the origin. At time t 10 seconds, your velocity is 20 meters per second. At 30 seconds, your velocity is again 20. At 40 seconds, your velocity is 0 because you see it touches the time axis, means here at time 40 seconds, velocity is again 0. So if you want to find velocity at different times, you just read the graph. इसको कहते हैं कि direct reading the graph. But if I ask you to find acceleration from these graphics, so acceleration from OA, from here to here, how much is that? That is slope of this line. That is the slope of this line. What is the slope of this line? This is theta. What is tan theta? Tan theta is equal to what? Perpendicular. That is 20 minus 0 by base, that is 10 minus 0. That is 20 by 10 is equal to 2. Obviously acceleration का जो SI unit है, that is meter per second square. Meter per second square. तो हमें मिला acceleration from 0 to this OA कहो या 0 to A कहो, ये आपको acceleration मिला because इस slope की वजह से. अब ए बी जो ग्राफ है, यहां तो स्लोप है नहीं, स्लोप इज 0, therefore acceleration from A to B is 0 because slope of velocity time graph is acceleration. कि यहां A to B तो स्लोप ही नहीं है, तो what is acceleration from A to B? That is 0 because slope is 0. अच्छा, from B to C, what is acceleration? यहां स्लोप नेगेटिव है बिकॉज थीटा जो है वो मोर देन 90 है, ग्रेटर देन 90, तो स्लोप इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है फ्रॉम बी टू सी. बट हाउ मच इज दैट? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट कैन बी रेड फ्रॉम हियर. बेस इज दिस, दैट इज 20 minus 0 by base is 40 minus 30, that is 20 by, okay, it's 10, it is again 2 meters per second. But it is retardation, it's a negative acceleration. Why I call it retardation? Because velocity is positive. You see, in this quadrant, the whole, it's a positive quadrant, velocity is positive everywhere from here to here. यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है वेलोसिटी, लेकिन इस क्वाड्रेंट पे वेलोसिटी हमेशा 0 है और यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है. इसका मतलब ये रिटार्डेशन है. Here acceleration is opposite to velocity and speed decreases, and when speed decreases you call it retardation. Okay, this is one example. Let me go to the another example. Let me go to the another example. Third point. Third point. Third point. Okay, let me make this time versus velocity. This. So what the graph I should make? Okay, I will make this graph, then this one, okay, then this one. तो यहाँ पर 0, ये समझो 10, 20, समझो 30 because I make it simpler. These figures. It is 10 और यहां पर जो वेलोसिटी है, let me say, is 15. So I am asking you what is the suppose I ask you what is the velocity at different times. At time t is equal to 0, velocity is 10, directly reading the graph. At velocity time 10 seconds, velocity again 10. At time 20 seconds, velocity is 0. At 30 seconds, velocity is 50. It is saying that I am directly reading the graph. But now I ask you, अगर मुझे देखना हो कि what is velocity
फ्रॉम ए टू बी, देन टू सी, देन टू डी, 1 2 3 तीन इंटरवॉल्स में क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको स्लोप निकालने की जरूरत है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये मत भूलो आप। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज इक्वल टू, स्लोप निकालिए यहां से यहां तक, सब कहेंगे स्लोप इज 0, हो गया 0, बिकॉज इट इज ए लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जो लाइन होता है ऐसे, ये जो लाइन है तो इसका स्लोप 0 है, जितना टिल्ट होगा उतना स्लोप बनेगा, और अगर वर्टिकल लाइन तो स्लोप इज इन्फिनिटी, वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब दूसरा एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। अब यहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, पहले नेगेटिव है, फॉलिंग लाइन है, तो यहां से ये अगर ये जो एंगल है मोर देन 90 है, तो या ऐसे मोर देन 90, तो मोर देन 90 एंगल बनने से ये जो स्लोप है नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कितना स्लोप है, एंगल तो यही निकालना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल एंगल इज मेजर लाइक दिस। सो हाउ टू फाइंड दैट, अगेन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा 10 - 0, ये डिस्टेंस ये वाला, सो 10 - 0 डिवाइड बाय बेस इज 20 - 10, दैट इज 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, now let me go to this one, acceleration from C to B, C to D। तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि थीटा इज लेस देन 90, ये वाला एंगल डायरेक्ट, तो लेकिन है कितना परपेंडिकुलर, ये वाला, दैट इज दिस वन, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज 15 डिवाइड बाय हाउ मच, बेस इस ट्रायंगल का, दैट इज 30 - 20, दैट इज 30 - 20, दैट इज 15 by 10, दैट इज 1.5। दिस इज हाउ यू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई मुश्किल नहीं है, ग्राफ लिया उसमें आपको सिर्फ स्लोप निकालना पड़ेगा हर एक सेगमेंट का अलग अलग, ठीक, ओके। चलो फोर्थ और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, चलो लेट अस डू एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए, ग्राफिक्स क्लियर हो जाए। फोर्थ, नाउ let me pick up the example. Okay, let me make a question. A body is released in gravitational field, is released in gravitational field, gravitational field. Find, make its velocity time graph. बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, इट फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, लेट इट नॉट रिबाउंड बैक फ्रॉम द ग्राउंड, फॉलिंग ही, सिर्फ फॉलिंग ही है, और यहां इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी 0 है, बिकॉज इट इज जस्ट रिलीज्ड। जस्ट रिलीज का मतलब है ये कि जस्ट रिलीज इट, you just release it, gently you release it, means initial velocity is 0. Initial means t is equal to 0. Now if you throw it like this, then it has an initial velocity. You don't throw it off, you just release it. जब रिलीज करोगे, just release करोगे, तो इसका initial velocity 0 हो गया, and it falls down with acceleration due to gravity g, that is 10 meter per second square, let me say. अच्छा, तो क्या होना चाहिए ग्राफ, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। पहली बात तो यह है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तीसरी बात यह है कि इनिशियल पॉइंट इज गिवन, t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0, मींस ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन।
ये पहली बात है कि पहला पॉइंट मार्क कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें वेलोसिटी और टाइम दिया है। तो इनिशियल टाइम दैट मींस t इक्वल टू 0, वहां वेलोसिटी क्या है, अगर 0 है वेलोसिटी तब जाकर आपने इनिशियल पॉइंट मतलब मार्क किया। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने जस्ट रिलीज किया। ये मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि इनिशियल मीन्स एवरीथिंग 0, इनिशियल मीन्स ओनली t इक्वल टू 0, बाकी चीजें इनिशियली हो सकती है, they can have some values, finite values, but generally we take initial velocity to be 0 to make things simpler. But initial velocity can be anything, but initial जो है that is t is equal to 0, not anything else is equal to 0. अगर हो तो हो। अच्छा, तो क्या है ग्राफ? पहली बात यह है कि the graph should start from the origin because initial point is given. दूसरा यह है कि ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दैट्स इट, फिनिश्ड। ये होना चाहिए ग्राफ। फॉलोइंग लाइन मींस दिस लाइन हैज ए नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। दैट इज इट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, लेट मी गो टू द फिफ्थ पॉइंट। अब बात यह है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है अगर ये कांस्टेंट नहीं है, जैसे मैंने वहां कहा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पुश एंड टाइम ग्राफ जो है वो कर्वीलिनियर होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। उस सूरत में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कर्वीलिनियर होगा, और अगर कर्वीलिनियर होगा तब स्लोप चेंज होता जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्लोप कांस्टेंट होता है। अगर कर्वीलिनियर ग्राफ पे स्लोप चेंज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा, स्लोप डिफरेंट होने की वजह से। और इसमें क्या है, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इन सच अ सिनेरियो? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन इन द गिवन टाइम इंटरवल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दोनों के लिए टेक्निक है, मैं दिखाऊंगा। यू जस्ट वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये देखिए, टाइम वर्सेस वेलोसिटी, ये है ग्राफ, ये है ग्राफ, ये है ग्राफ कर्वीलिनियर। इसमें यह मत कहो कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन फ्रॉम t1 टू t2। t1 एंड t2 इस टाइम एक्सिस पर दिए होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ को मार्क करो, जैसे हमने पहले भी किया था। ये हमने ग्राफ मार्क किया। ग्राफ को मार्क करने के बाद इन दो पॉइंट्स को मिला दो, ठीक। इस टाइम के लिए यहां पर वेलोसिटी मार्क करो, इस टाइम के लिए यहां पर भी वेलोसिटी मार्क करो, और इस लाइन का स्लोप निकालना है। अगर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला, समझो मैंने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला फ्रॉम t1 टू t2। अगेन इजी, एक ही लाइन अब डालना है इस लाइन को ट्रायंगल बनाने के लिए। ये है थीटा। बताइए tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर लाइक दिस, बेस लाइक दिस। परपेंडिकुलर इज v2 minus v1, base is t2 minus t1, that is delta v by delta t, that is average acceleration। खत्म होगी बात। ये है टेक्निक। कर्वीलिनियर ग्राफ है, दो टाइम्स को मार्क करो और दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो और उस लाइन का आप निकालो स्लोप। और स्लोप निकालना इजी है, उस लाइन का एक ट्रायंगल बना अपने तरीके से और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा स्लोप। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है? और क्या पूछा जा सकता है इसमें? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस खास टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है? उसका भी वही टेक्निक है जो वेलोसिटी के लिए है। तो जरा देखिए सिक्स्थ पॉइंट, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। अब इस यहां ये देखो, ये टाइम के लिए मुझे निकालना है, इस टाइम पर मुझे निकालना है व्हाट इज एक्सेलरेशन। इस टाइम को लेकर के पॉइंट को करो और एक लाइन डाल दो ऐसे टेंजेंट, जो हमने वहां किया है। यहां ये सिर्फ एक डेरिवेटिव हायर है और कुछ भी नहीं। इस लाइन को मैं अब बनाऊंगा एक ट्रायंगल, इस टेंजेंट को
टेंजेंट यहां डाला, अच्छा ये थीटा है। अब इस ट्रायंगल का बनाओ, आप निकालो स्लोप दैट इज परपेंडिकुलर बाय दिस बेस। ये टाइम अब इन्वॉल्व होगा ही नहीं, अब टाइम ये इन्वॉल्व होगा और ये इन्वॉल्व होगा। ये t2 समझो, ये t1 समझो, और इसके कॉरस्पॉन्ड्स आप यहां वेलोसिटीज भी करो। तो बताइए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो इट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, और इन डिफरेंशियल नोटेशन इट इज रिटन एज dv बाय dt। तो एक कर्वीलिनियर ग्राफ में अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, उस कॉरस्पॉन्डिंग टाइम के लिए आप उसको मार्क करो और टेंजेंट डाल दो, फिर उस टेंजेंट का आप ट्रायंगल बनाओ, तो उस ट्रायंगल का टेन थीटा निकालो, स्लोप निकालो उस लाइन का। ट्रायंगल तो आपने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया, तो उसमें आपको टेन थीटा मिलेगा और वही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट्स ऑल, कर दिया हमने। अच्छा, अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई स्टूडेंट्स मेक माइनर मिस्टेक्स, और कहां बहुत जल्दी मिस्टेक करते रहते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सिक्स्थ पॉइंट, हैव अ लुक। ये है ग्राफ, इट इज टाइम वर्सेस वेलोसिटी। ये मैंने ग्राफ बना दिया। तो मैं आपको बताता हूं, एट टाइम t is equal to 0, what is velocity? It is 0 because graph starts from the origin. Now my question is, what is acceleration here at time t is equal to 0? Acceleration at t is equal to 0. इसको समझो 8 seconds. Acceleration at t is equal to 8 seconds. ये दो का जवाब है। जनरली स्टूडेंट क्या कहता है, एक्सेलरेशन हियर एट दिस पॉइंट एट दिस टाइम इज 0। वो समझता है कि t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, बट दैट इज रॉन्ग। आपको यहां इस पॉइंट पर स्लोप निकालना पड़ेगा, ग्राफ का स्लोप ही आपको एक्सेलरेशन देगा। तो यहां पर आपको टेंजेंट डालना पड़ेगा इस ऑरिजिन पर ऐसे कुछ, तो फिर उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अच्छा खासा स्लोप है, तो दैट मींस द बॉडी स्टार्ट्स with initial velocity is 0, but it starts with acceleration. So body starts with initial acceleration. Body starts with initial acceleration. Starts with initial acceleration. Misconception ये है कि शायद बच्चे समझते हैं कि यहाँ सब कुछ 0 है, t is equal to 0, velocity 0, acceleration 0. t is equal to 0, velocity 0 है because the graph starts from the origin. लेकिन acceleration 0 नहीं है, the body starts with heavy acceleration because थीटा बहुत ज्यादा है। आगे जाकर के स्लोप कम हो जाता है। देखिए टेंजेंट डाल दो, स्लोप यहां स्लोप ज्यादा है, यहां स्लोप कम है, यहां आगे जाकर स्लोप और कम हो जाता है, और लास्ट में यहां तो स्लोप, जब आप लाइन लगाओगे दैट लाइन बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इस लाइन का स्लोप 0 है। यानी कि फाइनली जो है एट टाइम t इक्वल टू 8 seconds, सो द बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन फाइनाइट, अच्छा खासा एक्सेलरेशन होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी becomes 0 at t is equal to 8 seconds. एक्सेलरेशन यहां 0 है क्योंकि यहां पर जब स्लोप निकालेगी आप टेंजेंट का, तो वो तो 0 है बिकॉज दैट बिकम्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अगर इस मोशन की बात की जाए, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन इनिशियली, बट फाइनली द एक्सेलरेशन बिकम्स 0, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। The body moves with constant velocity because you know if the acceleration is 0, the body has to have constant velocity. ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। अच्छा, one more point that needs to be discussed is velocity time graph में ही मैं velocity time graph जो है ना बेटा, मैं उसका आपको और एक चीज निकालने की कोशिश करूंगा। velocity time graph का एरिया निकालूंगा, मैं देखूंगा वो एरिया कहीं किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच तो नहीं करता है। लेट मी सी, हैव अ लुक। 7th पॉइंट, ये है ग्राफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी। ओके, ये समझो ग्राफ है।
यहां टाइम t1 है और यहां टाइम t2 है। अच्छी तरह से समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। अब स्लोप निकालूंगा नहीं, क्योंकि स्लोप निकालने से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाता है। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया इसके अंडर आता है वो निकालूंगा। एरिया ऑफ दिस ग्राफ अबोव द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के अबोव जो एरिया है ये एरिया में निकालूंगा। जब मैं एरिया निकालूंगा तब मैं देखूंगा कहीं ये एरिया जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी से मैच तो नहीं करता है, ताकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से वो फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिल जाए। ठीक है, ओके, जरा निकालते ये एरिया, ये छोटा सा एरिया निकालता हूं। ये बेस पर dt है, लेकिन वर्टिकल लाइन तो पूरा वेलोसिटी है। एलिमेंट तो यहां पर है, ये तो एलिमेंट नहीं है, वर्टिकल ये वेलोसिटी है, बेस एलिमेंट। तो बताइए छोटा सा एरिया किसके बराबर है? dA, छोटा सा एरिया vdt। ये वेलोसिटी का लाइन है, ये dt का लाइन है, ये छोटा सा एरिया जो है ये vdt है, ये वाला एरिया। अच्छा, इंटीग्रेट करके ये पूरा एरिया मिला, यहां से यहां तक पूरा एरिया इंटीग्रेट करके, मगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा t1 टू t2 vdt। ये है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया जो है ये इसके बराबर। अब मैं देखना चाहूंगा कहीं ये किसी और चीज के बराबर तो नहीं है। लेट मी सी, देखता हूं, एरिया तो मिला। अब मैं देखो ये एरिया किसी और चीज के बराबर अगर है तो ठीक है, एरिया निकालने से वो चीज मुझे मिलता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच होता है तो यू मस्ट नो if you at all know speed or velocity in a particular direction, one dimensional motion is ds by dt। rate of change of distance कहो या rate of change of displacement कहो, because the body is moving in the in one dimension। वैसे ग्राफिक्स जो है जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, it is always valid in one dimensional motion, it is useful in one dimensional motion। बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करेगा, देन दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर इज नॉट वैलिड। अच्छा, बताइए यहां से क्या मैं लिखूंगा, ds किसके बराबर? vdt। ds किसके बराबर? vdt। जरा इंटीग्रेट कीजिए, खत्म। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन vdt, तो t1 टू t2 इंटीग्रेशन लिमिट्स, that is it, have a look। ये देखो, area is equal to integration of velocity with respect to time, distance or displacement is also equal to integration of velocity with respect to time। ये देखो और ये देखो, तो I got the law। The law now is area under velocity time graph is just distance। ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब area under velocity time graph is equal to distance। ये है डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन सोचना पड़ेगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एट्थ पॉइंट, यहां जरा देखिए, इट इज टाइम वर्सेस वेलोसिटी और ये है ग्राफ। चलो मैं ग्राफ थोड़ा सा इजी बनाता हूं, चलो यही बनाता हूं। इट इज 0, इट इज 10, इट इज 10, इट इज 20, इट इज ओके 30। बताइए व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल whose velocity time graph is this? That is the question. What is the distance covered by the particle or distance covered by the particle whose velocity time graph is this? तो एरिया निकालिए, टाइम एक्सिस के अबो जो एरिया है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, बस बात खत्म। डिस्टेंस इज इक्वल टू ओके 1/2 बेस 10 इंटू हाइट, दैट इज ऑल्सो 10। इसका भी इतना ही एरिया है जितना इसका है, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स कर दो, प्लस इसका एरिया, इसका दैट इज
20 माइनस 10 इज बेस इंटू हाइट, ये स्क्वायर बन जाता है 10, 20 माइनस 10 इज 10 इंटू दिस 10, 10 इंटू 10, 2 gets cancelled, it is 100 plus 100, that is 200 meters डिस्टेंस की वजह से। ये डिस्टेंस हमें मिला और डिस्प्लेसमेंट भी। वजह यह है कि वेलोसिटी इज ऑल अलोंग पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ ही नहीं, पार्टिकल्स ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल वापस तो आया ही नहीं, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है, इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपका ग्राफ कुछ यूं है जो मैं दिखाना चाहूंगा, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड अप। आप आगे जा रहे हो तो डिस्टेंस इज कवर्ड, वापस आओ तो डिस्टेंस इज कवर्ड। सो हियर नाइन्थ पॉइंट, ये देखिए नाइन्थ पॉइंट, ये अगर मेरे पास ग्राफ है, ये देखो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, चलो ऐसे बनाता हूं, ये 0 है, ये 10 कर दो, ये 20 कर दो, ये भी 10 कर दो, ये भी स्मिटी के हिसाब से -10 कर दो, चलो ठीक है। तो बताइए डिस्टेंस इज अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, डिस्टेंस तो ऐड ही हो जाता है, सब एरियाज अपर एरिया प्लस लोअर एरिया। क्या है ये एरिया? 1/2, बेस इज 10, हाइट इस ट्रायंगल का 10 हो गया इसका एरिया, प्लस उतना ही एरिया यहां पर भी है, दैट इज 1/2, 10 into 10, ये हो गया S is equal to 2 times the same thing again, 1/2, 10 into 10 को 100, 2 cancels 100 meters. This is the distance. But now what about displacement? याद रखो डिस्प्लेसमेंट जो है अब के बाद, that is not this plus this, because here in this quadrant velocity is negative, यानी कि पार्टिकल आगे गया है फिर वापस भी आया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इज अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, दैट इज 0, क्योंकि ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया के बराबर है। So this example you please concentrate on it and see for yourself how velocity time graph is explained. And with these words I end up my lecture. I again ask my students to download the app Tantre Sir Physics Classes and watch the YouTube channel regularly, because I am uploading the lectures regularly every day, and I will be completing your syllabus. I will be teaching you NEET and IIT, anything, everything, but you have to follow my lectures. You have to watch them, do them many a times, and finally you will be able to do physics yourself. और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि you subscribe my channel. That is I ask from you. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि we provide you with the lectures, with the videos that come up. Thank you.